Very good morning, YouTube. Today is a very, very exciting day because today is new tire day. Woo, 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 woo. It's not every day that you get new tires for your bike. First, let's cold start this puppy and kill switch. Alright. So, now as you can look here at my rear tire, अपने wear indicator पे आ गया है और wear indicator से भी ज़्यादा wear out हो गया है, तो rear tire is completely gone. Oh, there's a nail in the tire. Very nice. There's 2 nails in the tire. Anyways, फर्क नहीं पड़ता, अभी change होने वाला है ये. And the front one has about 30% life left. But yeah, we're gonna change the whole set. जब भी बाइक के टायर्स चेंज होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि उसके बाद जो बाइक चलती है, that's on a different planet. It starts feeling like a new bike. So अभी फ़िलहाल मेरे बाइक में है Apollo Alpha H1. This is the second set I have of these tires. And they're very good tires. I mean, for the price at which they come and the performance that they offer and the life that they offer, it's a very well-rounded, very good tire. But now I wanted to try something else, and I've heard good things about the C8 Sportrad. I asked Zain bhai from this engine कि भाई आप बताओ which tire would you recommend, and he said C8 Sportrad over Alpha H1, and he's kind of an expert with motorcycles, so I take his word. मेरे को काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि वो अच्छा टायर नहीं है Sportrad, but अभी जो RC Cup हुआ था लास्ट वाला, उसमें Sportrad यूज़ हुआ था. So if a tire can be used for the purpose of racing, it has to be a good tire. आज मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त गौरांग है. He is gonna be on his Dominar. He also switched to the Sportrad from Alpha H1 about I think a month ago, and his reviews are good. He had it when the rains were still going on in Mumbai. According to him, they offered much superior grip in the wet when compared to the Alpha H1. C8 क्या थोड़ा नया टायर है, और उसके ऑनलाइन तो मुझे रिव्यूज़ नहीं दिखे. जो भी है सब पेड रिव्यूज़ है. I'll be able to give you guys my review after, you know, like 3-4 months of riding it. I won't be able to give it to you right after the installation. Actually, I wanted to go for the TVS Pro Talk. अगर आप मोटरिंग चैनल देखते हो तो आप लोग को पता रहेगा how much they love that tire, and I love motoring, so I respect their opinion when they recommend a tire. और मैंने देखा था कि मोटोजूमर भी अपने ड्यूक पे Pro Talk यूज़ कर रहे थे, and he also had very good things to say about it. He was like, this is equivalent to the Metzeler, which is a great compliment. So मेरे को ideally लेना तो वही था, but those tires are very difficult to source. मुंबई में तो नहीं मिल रहे वो. We have asked around a lot, so I'm gonna have a bit of an experiment with the C8s, and hopefully it works out well. As you guys know, I love to lean, I love to ride fast, I love to just give it the beans whenever I can, so it's important to me that my tire is always supporting me in those sort of shenanigans. So I really hope that it's a good tire and it can support my riding style. गौरांग बहुजा, आप आर्य के व्लॉग्स में आते हो ना? हाँ, देखा है आपको. चल तेरे पास है ना मैप, तू लेके चल मेरे को. 1 किलोमीटर चला है, रेडिएटर फैन ऑन हो गया. देख, इसको मैं यार सिटी में निकालता ही नहीं हूँ आरसी को, इतना गरम माँ की आँख. इसलिए ना यार एक मल्टी बाइक गराज होना बहुत ज़रूरी है. मतलब आपके पास हर एक पर्पज़ के लिए एक बाइक होनी चाहिए, और फिर वो बाइक को उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करो, तब जाके आपकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी रहेगी और मज़ा भी आएगा. तब बहुत मज़ा आएगा. लाइक माई CT 100, like it says in the name, CT, city. It's a city bike. It's a brilliant city bike. 60 का एवरेज देती है, कभी हीट नहीं होती है, मतलब पैरों पे तो उसकी गर्मी फील नहीं होती है. And it has a lot of low end torque. It's very smooth to ride. This one is not that. This one is made for horsepower. This one runs lean from the factory, and yeah, she's a hot little peppy little baby. मेरे रेयर टायर को वेयर आउट होके काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं उसके बाद मज़े ही कर रहा था last couple of months, I mean, sorry, because it's a slipping, sliding everywhere. तो बस throttle खोलो, slide करते रहो, ऐसा dirt वाला feel आता है tarmac पे, because this has a lot of torque, so it just makes the rear wheel lose grip very easily. So that's been fun, but now it's time I find some grip in my life. आप लोगों को एक फ़नी कहानी बताता हूँ यार. जब ये साल की दिवाली सेलिब्रेट हम कर रहे थे, तब मैं और मेरे सब दोस्त लोग हम सब थोड़ा बहुत
पी रहे थे और फटाके फोड़ रहे थे। पार्टी चल रही थी, मज़ा आ रहा था, सब सही हो रहा था। फिर मेरे को मेरे जेब में मिली मेरे बाइक की चाबी, आज़ादी की चाबी। इसलिए पीने के बाद कभी भी ना अपने जेब में अपनी बाइक की चाबी मत रखा करो। तो मेरे बिल्डिंग के अंदर ही मैंने गौरांग को बोला कि तू मेरे पीछे बैठ और मैं आज़ादी पे व्हीली मारूंगा। और मैंने मेरे रेयर ब्रेक को वो टाइम पे कवर नहीं किया था, तो आपको वीडियो दिखाता हूँ। मैं आज़ादी पे व्हीली मारा, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और सीधा आतंक पे जाके गिरी मेरी आज़ादी। मतलब मेरी एक बाइक मेरे दूसरे बाइक पे जाके गिरी। Here, wheel spin life. So anyways, it's a very funny incident that happened. It's a very funny video, something I'll remember for a long time to come. But what happened is that मेरा क्लच लीवर जो है ना वो बेंड हो गया साला। नया क्लच लीवर था, ज़्यादा इम्पैक्ट क्लच लीवर पे आया और क्लच लीवर अभी ऐसा टेढ़ा हो गया है। हाँ गुंडा बनेगा। वापस व्हील स्पिन। क्या मज़ा आता है यार व्हील स्पिन करने का। अंकल जी, फ़ोन पे बात किया था, सीएट का स्पोर्ट राइड इसमें फिट करना था। वर्दी क्यों का हाँ कर रहे हैं, करेंगे ना। अरे गंदा है रे। स्क्रीन गंदा ठीक है, लेंस गंदा नहीं होना चाहिए। बड़ा क्यूट दिख रहा है तू आजकल यार। So this is the tire, प्रोटो क्या बोल रहा हूँ, स्पोर्ट राइड। KTM कप में यूज होता है ये। हाँ आरसी कप में। आरसी कप मतलब इट्स एन एमेचर रेसिंग सीरीज, बट फिर भी अगर रेसिंग में यूज होता है तो अच्छा ही होगा। Some people we know have misconception about CL, Yeah. but it is a decent tire. I have also applied it on my bike. अप्लाई किया गया, मतलब 6 घंटा अप्लाई करके निकाल देने का। Yes. Overnight exactly, face mask? Exactly. लुक्स गुड मैन, देखते हैं वो तो अभी यूज़ करने के बाद ही समझ में आएगा। इट्स 150 60 17। सो जो टायर है वो ये वाले शॉप पे इंस्टॉल नहीं होगा एक दूसरे शॉप पे जाना है। बट भाई साहब गौरांग के पीछे बैठेंगे और वी विल गो देयर। भाई नए टायर्स लगना इतना एक्साइटिंग होता है ना, क्योंकि उससे बाइक में जो फ़र्क फील होता है ना, और क्या है जो जूने टायर जो धीरे जूने होते हैं तो फिर उसमें वो समझ में नहीं आता है कि कितना परफॉर्मेंस में डिप्रिशिएशन हुआ है, बट काफ़ी होता है। और जब नया टायर लगता है तब वो रियलाइज़ होता है कि भाई बाइक की हाइट भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो थ्रेड ऑफ कोर्स पतला होते जाता है। ये लोअर परेल का ब्रिज और ये ब्रिज के नीचे ये दुकान है और इधर पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले रेयर टायर कर रहे हैं। ओके जनता लोग, स्पोर्ट राइड लग गया है, फ्रंट में ऐसा दिख रहा है और रियर में ऐसा। मैंने ना मतलब ऑनलाइन बहुत स्टूपिड रिव्यूज़ देखे टायर्स के। लोग टायर ये बेसिस पे लेते हैं कि वो लुक उसका कैसा है। बाइक कब से धूप में खड़ी थी, मस्त तवा फ्राई बन गया इसका। मेरे हिसाब से तो बाइक को भी वो बेसिस पे लेना कि वो कितना अच्छा दिखता है वो भी काफ़ी स्टूपिड है। व्हाट मैटर्स टू मी इज़ हाउ द बाइक राइड्स, हाउ इट परफॉर्म्स, इज इट गिविंग मी व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द मशीन और नो, दैट्स द रियल क्वेश्चन। चलो ब्रेक वेक तो काम कर रहा है, मतलब इसने सही से इंस्टॉल तो कर दिया। हटो रे। ये मुंबई के रास्तों पे गाय बहुत सालों बाद दिख रही है। कोई मंदिर से छूटी हुई है ऐसा लग रहा है, तो मंदिर की होगी, उसका लीश निकल गया रहेगा बेचारी। अभी तो व्हील स्पिन कर रहा है टायर। आइडियली मुझे व्हील स्पिन नहीं चाहिए नए टायर में, बट आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ द ग्रीस दैट्स ऑन द टायर। सो लाइक आई सेड, वील हैव टू फाइंड आउट how this feels in a couple of months, because I'll have to ride it in all sorts of scenarios to know for a fact कि कैसा है ये दादर स्टेशन की इधर का जाम। तो भाई
हर रोज़ की चीज़ है। मतलब इधर जाम सुबह 4-5 बजे शुरू हो जाता है, क्योंकि इधर एक मार्केट लगती है, और फिर मतलब समझ लो पूरा दिन इधर ऐसे ही हालत रहता है। मस्त KTM की गरम गरम हवा खाते हुए जा रहा हूँ मैं घर वापस। ये टायर का मेरा अभी चेंज कराने का रीज़न ये था कि मेरा दिसंबर में, मतलब कि 1-2 वीक में ही मेरा प्लान है इसको ट्रैक्शन मोटोड्रोम वापस लेके जाने का। गुजरात में मेरी एक कज़िन की शादी है, वो भी अटेंड करना है, एंड उधर ट्रैक पे भी राइड करना है। सो आई वांटेड न्यू टायर्स ऑन ट्रैक। ऑफ कोर्स आई वांट एज मच ग्रिप एज पॉसिबल। इस बार तो घुटने को घिसना ही है। एंड ये बाइक का ऐसा ना कि यार आई डोंट एन्जॉय राइडिंग इट इन द सिटी। On the highways it's fun, but not even that. Ideally I just want to ride this one on the racetrack, क्योंकि इतना stiff suspension है, and the way that the engine has been configured and the way that the whole bike has been configured, it does not do well on the street. That is not the case with the newer RC390 or the newer Dukes. They are much more versatile. They have a much softer suspension, but this one is a proper track focused bike. भाई इसके नाम में तो लिखा है यार RC रेस कंपटीशन। सो ये उसी के लिए बनी है। और अभी इसका चेन स्प्रॉकेट भी गया है। आई थिंक मेरे टायर्स कुछ 11-12 हज़ार किलोमीटर चल गए, और चेन स्प्रॉकेट भी उतना ही चला है या उससे थोड़ा ज़्यादा चला है। सो इट दैट्स गुड लाइफ। और अभी जो इसका चेन स्प्रॉकेट है उसमें मेरा प्लान ऐसा है कि आई डू 15 इन द फ्रंट एंड 42 इन द रेयर। अभी इसमें स्टॉक में 45 आता है। बिफोर दिस आई हैड एक्सपेरिमेंटेड विद 1446। Now I'll experiment with a 1542. ओ भाई टायर ने स्लिप किया, अचानक से ग्रिप किया, फेंक दिया मेरे को पीछे। I want to experiment with a 42 in the rear, which is RC200 का sprocket, because then I'll have much lower RPMs at a higher speed. सो टूरिंग में फिर मुझे एवरेज भी अच्छा मिलेगा, और इंजन पे स्ट्रेस भी कम रहेगा, और वाइब्रेशंस कम रहेगा, जिसकी वजह से मुझे को थकान कम होगी। बट ओनली ड्रॉबैक ऑफ दैट 42 इज़ गोइंग टू बी दैट ओ इधर एक क्या है, ये बाइक का कुछ स्टोर खुला है, मोटो वेगा। हाँ एक्सेसरीज मिलती है यार, अच्छी बात है, घर के पास में ही है। या बट द ओनली प्रॉब्लम विद द 42 इज़ गोइंग टू बी दैट सिटी में ना बहुत चोक होगा एट लोअर RPMs। व्हाई इज इट व्हील स्पिनिंग सो मच? शायद एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। चेक करवा ही लेंगे, क्योंकि ये वेंचर मेरे को भरोसा नहीं है ये लोग क्या एयर प्रेशर डालते रहेंगे बाइक में। गेट इट चेक राइट नाउ ओनली। 34 था। ओके, ये जो पंप है ना ये माहिम में है, पैराडाइज थिएटर के सामने। इसका जो मीटर है ये नया मीटर है। So that's why I come here, because this is accurate. बाकी सब पंप्स का मेरे को इतना भरोसा नहीं है। 40 बैंड चोद भयंकर। अभी फिलहाल तो काफ़ी व्हील स्पिन कर रहा है टायर। आई रियली होप दैट डजंट कंटिन्यू और एल्स आई एम गोना रिग्रेट बाइंग इट। Anywho, thanks a lot for watching this one here. I will see you boys and girls in the next one. Of course, not doing the speed limit. Why the fuck would I do the speed limit on a super bike? किधर रह गया? मैंने ब्रिज क्रॉस कर लिया। आई एम रीचिंग द अदर स्टेशन। हाँ आई सॉ यू, यू डिडंट सी मी। नहीं, इतना ऑरेंज बाइक गया, दिखा नहीं तेरे को? आई सॉ यू स्टॉप। मैं घर पे आता हूँ, मेड का बेंचो देखता हूँ मैं क्या सीन है। ठीक है ब्रो। हाँ, गौरांग को मैं दिखा ही नहीं।